Hello friends, very good morning. Today's our topic is electromagnetic induction, popularly known as EMI, right? So before going to that, let's talk about a bit basic of this one. Magnetic flux. We have read electric flux, same way magnetic flux, right? Physical significance is concerned, it is total. The first quantity is magnetic flux, phi, defined as the total number of magnetic lines of force passing through a normal surface kept in the direction of magnetic field, right? Suppose I am having this as north pole, a surface is kept like this. So whatever number of line of forces will pass through it, right, that will be known as magnetic flux, right? But mathematically, magnetic flux is defined as phi is equal to B dot A, or phi equal to BA cos theta, right? Where theta is the angle between the magnetic field vector and the normal of the surface, as we did in electric flux, just replica of that, right? So phi comes out to be BA cos theta for maximum flux. Again, now phi is depending on what? This angle cos theta, which is a variable, right? So phi will be max if and only if cos theta be max, and plus cos theta value is plus 1, that is cos 0 generally, right? So phi will be max if and only if cos theta be plus 1, and that is at cos 0. So at theta equal to 0, cos theta is having the maximum value plus 1. Consequently, phi max will be BA, right? And this situation arises when suppose I am representing the magnetic field like this, a parallel line, and I am placing a surface perpendicular to it like this, right? This will be the normal of the surface and ds, and this is the magnetic field. So theta will be 0 here. Means when the surface is kept perpendicular to the plane, remember this value, this thing, perpendicular, I am saying perpendicular plane, then theta comes out to be 0 and phi becomes maximum. Few friends of mine are asking that I must speak in Hindi, so I am ready for that. But actually in CBSE you have to write down the paper in English, that's why I am using this language. लेकिन आपको लगता है कि हिंदी में आपकी समझ में आता है, इसमें अंग्रेजी में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं. इसी फाई को हम मिनिमम के लिए निकालते हैं, फाई मिनिमम, राइट? सो वी आर हैविंग फाई इक्वल टू BA cos थीटा, राइट? हम कह रहे हैं कि फाई डिपेंड कर रहा है किस पे? cos थीटा पे. फाई का cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0, और 0 होती है cos 90 पे, राइट? यानी सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं
और इसके पैरेलल मैंने सरफेस को रखा है ऐसे, रिमेंबर मैं कह रहा हूँ पैरेलल, तब जाके नॉर्मल इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ऐसे होगा। ठीक, तो ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। इस केस में थीटा 90 डिग्री होगा और फाई मिनिमम जो हो जाएगा वो BA cos 90 यानी 0। देखिए कब आया, when surface is kept पैरेलल टू द प्लेन, वहाँ परपेंडिकुलर में 0 हो रहा था, यहाँ पैरेलल टू द प्लेन है तब 90 होगा। देन फाई विल बी मिनिमम। तो इसी तरह से थोड़ा बहुत हिंदी हम बीच में यूज़ करते रहेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो ये कंडीशन आई फाई मैक्सिमम की, फाई मिनिमम की, और जनरली जो फाई है उसको क्या डिफाइन किया हमने, मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स, मैथमेटिकली बात करें इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट, रिमेंबर, और नहीं जानते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड सरफेस एरिया वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। इट्स यूनिट इज वेबर, रिमेंबर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, राइट। यहीं से यदि मैं फाई की वैल्यू मैक्सिमम लिखूं B × A, तो यहाँ से B आ जाता है, 5 आया A, इसलिए यूनिट को हम जनरली आपने देखा होगा वहाँ भी वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, इसी को हम टेस्ला बोलते हैं, राइट। तो वेबर एक्चुअल में मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, ठीक है। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस, क्योंकि इन्होंने डाया पैरा फेरो सब डिलीट कर दिया सिलेबस से, इसलिए हम थोड़ा सा यहीं पे उसका रेफरेंस लेंगे। एक वर्ड हम पढ़ेंगे, परमीय पढ़ ही रहे, शुरू से ही ले रहे हैं इसको, परमिएबिलिटी, म्यू अक्सर लिख रहे हैं हम लोग, राइट। तो है क्या परमिएबिलिटी, तेरा याद रखिए, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस लीजिए या मैग्नेटिक मीडियम कह दीजिएगा, टू अलाउ maximum number of magnetic lines of force, right। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू इक्वल टू होता है B/H। B जो है इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर्ड बाय द सब्सटेंस। किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, उसके अंदर जो फील्ड है वो कहलाता है बी, और ये एक तरह से अप्लाइड फील्ड भी कहते हैं इसको, और फील्ड इंटेंसिटी भी इसी का नाम है, राइट। म्यू जहाँ तक बात B0 की है तो B0 इज इक्वल टू μ0 Hb है। एक रिलेटिव परमिएबिलिटी यूज करेंगे तो μ/μ0 हो जाएगा, अक्सर ये वर्ड यूज़ किया जाएगा, राइट। तो किसी भी मैग्नेटिक का परमिएबिलिटी हो जाएगी μ0 टाइम्स ऑफ μr, राइट। ये तो परमिएबिलिटी की बात हुई। ऐसी एक वर्ड यूज होगा ससेप्टेबिलिटी,
is its susceptibility of a magnetic material is its ability to acquire the magnetic field, or it shows how quickly a magnetic material can acquire the magnetic field, right? हिंदी में हम कहते हैं कितना ससेप्टेबल है, जैसे वर्ड यूज़ करते हैं इसको। इसका सिंबल है काय, ये होता है I/H। काय बोलिए, जाई बोलिए, जो भी है, ये I है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक वर्ड यूज होगा। H आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये बात किया था हमने। ये डेफिनेशन यहाँ नहीं है लेकिन इनकी ज़रूरत है, और ये जो चैप्टर डिलीट हुआ उससे रिलेटेड है थोड़ी सी, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसको दे रहे हैं आपको। एक और डेफिनेशन अभी अब आई आ गई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, थोड़ा सा इसका भी आइडिया होना चाहिए। आई defined as the magnetic dipole moment per unit volume of a magnetic substance। काफ़ी काम आती है क्वांटिटी। आई जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यदि आपको याद हो एम आई हमने निकाला था MNIA बाया वी, राइट। एरिया वॉल्यूम से लेंथ कट गई तो खाली रह जाएगा एम्पियर पर मीटर। इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर पर मीटर होती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राइट। और एक रिलेशन होता है वो भी आपको याद रखना चाहिए। म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी इज ऑलवेज म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय। ये आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी है, जाय आपकी ससेप्टेबिलिटी है, याद रखिएगा। और ये आपकी ससेप्टेबिलिटी है, राइट। अब जो मेरा मेन टॉपिक जो हमने हेडिंग लिखा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बला क्या है, राइट। तो आज जो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी अप्लायंस यूज कर रहे हैं, आज हम जो एंजॉय कर रहे हैं, जो लग्जरियस लाइफ हम जी रहे हैं, उसके पीछे मेन यही टॉपिक है, राइट। फैराडे, माइकल फैराडे, इफ यू हैव हर्ड द नेम, फैराडे ने 1831 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या पता गई थी, तो ऑस्टेड ने क्या बताया था, ऑस्टेड कंक्लूजन वाज दैट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस is an allotropy of electric property। ये तो ऑस्टेड ने दिया था, फैराडे के दिमाग में आया, उसने कहा इसका उल्टा क्यों नहीं भाई, उसने कहा इसका रिवर्स क्यों नहीं कर सकते हम लोग। मीन्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी व्हाई कांट वी यूज द मैग्नेट, वी कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यदि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रॉप है तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक का इलेक्ट्रॉप होगा। तो व्हाट फैराडे डिड, ही ट्राई टू डेवलप इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बाय यूजिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, राइट। इस तरह से इसको बाईपास करने के लिए, तो फॉर दैट ही परफॉर्म ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि 1000 से ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिए, और बाद में जब फ्रस्ट्रेट हो गया तो उसने अपनी मैग्नेट को कॉयल के ऊपर खींच के मार दिया।
तो जैसे ही मैग्नेट कॉयल के आसपास आई, उस पे लगा हुआ गैल्वेनो हिलने लगा, राइट। तो काफ़ी पॉपुलर स्टोरी है। तो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था, एक बार मैग्नेट लिया, इससे कुछ डिस्टेंस पर उसने एक कॉयल रखी इस तरह से, इस कॉयल से एक गैल्वेनो जोड़ दिया, राइट। What happens initially in first case when he placed a bar magnet near to a coil, no deflection was there, no deflection in the galvano. गैल्वेनोमीटर को शॉर्ट फॉर्म गैल्वेनो लिख रहे हैं। इसका क्या मतलब हो गया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं हुआ, राइट। फिर बात वही भी, गुस्सा आया, कॉयल को फेंक के मार दिया, मैग्नेट को कॉयल पे फेंक के मार दिया। कॉयल तो जहाँ थी वहीं थी, इसको फेंक के मार दिया, इधर नज़दीक ले आया मतलब। तब क्या हुआ इस केस में, गैल्वेनो starts showing deflection। क्या मतलब हुआ, एन EMF कह लीजिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस, तभी तो हिलेगा जब इसमें EMF आएगा, राइट। जब वो गुस्सा कम हो गया, फिर उसने चेक किया कि नहीं भाई, यदि मैं मैग्नेट को वहीं रखूं और अब की बार कॉयल को फेंक के मारता हूँ, कॉयल को नज़दीक लाता हूँ, उसी एक्सपेरिमेंट को फिर दोहराया। अब की बार इसको लाया, पहले इसको लाया था, अब की बार इसको लाया, तो क्या हुआ, इसमें भी सेम कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गई, गैल्वेनो शोज डिफ्लेक्शन। फिर इसका क्या मतलब हुआ, उसने कहा EMF इज डेवलप्ड, एक EMF प्रोड्यूस हुआ। फिर एक और केस निकाला, उसने कहा दोनों को मूव कराता हूँ, मैग्नेट को भी और कॉयल को भी। दोनों को सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव किया, यानी जो डिस्टेंस थी D, इनिशियल डिस्टेंस जो थी, उसको मेंटेन किया। तो क्या हुआ, इस केस में गैल्वेनो शोज नो डिफ्लेक्शन, मीन्स कोई EMF नहीं है, राइट। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में आया, डिफ्लेक्शन आ कब रहा है, या तो मैग्नेट मूव कर रहा है या कॉयल मूव कर रहा है, राइट। दोनों मूव कर रहे हैं एक साथ, तब भी नहीं हो रहा है, दोनों एक डिस्टेंस पर रखे हैं, तब भी नहीं हो रहा है। तो उसने पहले मैकेनिकली डिफाइन करने की कोशिश करी। इस पहले केस में यदि हम चेक करें तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, एक फिक्स डिस्टेंस पे है तो 0। इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी डज एग्जिस्ट, क्योंकि एक स्थिर है, दूसरा मूव हो रहा है। इसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी डज एग्जिस्ट, पर यहाँ चौथे केस में दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0। तो डिफ्लेक्शन कब आ रहा है, जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी हो, चाहे वो उसकी तरफ जाए चाहे उससे। अब एक और केस और निकाला उसने कहा हम दूर जाएं तब भी हो रहा है, दूर ले जाएं कॉइल को तब भी हो रहा है, राइट। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से उसने कंक्लूजन क्या निकाला, उसने कहा वेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, जो शुरू में निकाला उसने अपना मैकेनिकल डेफिनेशन, वेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन, किसके बीच में, बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉयल, तब क्या हो रहा है, देन एन EMF इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉयल,
राइट। उसने कहा इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, शुरू में इसने यही वर्ड यूज किया, सो दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब सवाल ये उठता है, बता तो दिया, अब ये सवाल उठा कि भाई हुआ कैसे, फिजिक्स कहाँ लगी, ये तो मैकेनिक्स लग गई, राइट। तो उसको उसने दोबारा से सिस्टम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। देखिए केस 1 में क्या हुआ, व्हेन मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर टू द कॉयल, तो क्या होगा, ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल पास थ्रू इट। जरा इसको ब्रूम शेप में बनाना, वैसा झाड़ू की शेप में बनाते हैं, तरीका है इसको रिविजन करने का, ये फाई, राइट, फिक्स्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी पहले केस में मैग्नेटिक फ्लक्स फिक्स था, इसलिए कोई ईएमएफ नहीं हुआ, ई 0 था, ठीक। अब सेकेंड केस में क्या हुआ, मैग्नेट को कॉयल के नज़दीक ले गए, मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड्स द कॉयल, व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस विल इंक्रीज, ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, ये बढ़ेगा, ठीक है। इनको इंटरसेक्ट नहीं करना है, तो फ्लक्स फाई डैश हो जाएगा। नज़दीक ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, दूर ले जाएंगे तो कम हो जाएगा। फ्लक्स का फाई डैश होने का मतलब है ये फाई डैश या तो बड़ा होगा फाई से या कम होगा, राइट। इस केस में एक चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा, डेल्टा फाई विल बी देयर विच विल प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। अब थर्ड केस को देख लेते हैं। थर्ड केस में क्या हुआ, मैग्नेट जहाँ था वहीं रखा, कॉयल को नज़दीक ले गए, अब की बार कॉयल को मूव कराया गया, तो लाइन ऑफ फोर्सेस फिर भी बढ़ेंगी, राइट। नज़दीक लेंगे तो फाई डैश विल बी ग्रेटर देन फाई, या दूर ले जाएंगे तो फाई डैश विल बी लेस देन फाई। यानी सीधा सीधा बात, एक डेल्टा फाई डेवलप हो जाएगा और उसी की वजह से, उसी का कॉन्सिक्वेंस एक ई डेवलप हो जाएगी, राइट। चौथे केस में दोनों एक ही डिस्टेंस पे रखे, तो उससे क्या हो गया, जो इनिशियल फ्लक्स था वही रहा, क्योंकि सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। चौथा केस में क्या हो गया, फाई फिक्स्ड है तो ई 0 है, राइट। तो ये इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आ गया। क्या आया कि व्हेन ए मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर टू अ कॉयल, व्हाट विल हैपन, a certain number of magnetic lines of force will pass through it, so it will have a fixed magnetic flux of its own, and in that case it is not showing any deflection, right. In second case, when magnet is brought towards the coil or away from the coil, what happened, the magnetic flux related to that coil or that circuit electron will have it, the flux will vary। अब उस फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है। चौथे केस में क्या हुआ, अब की बार मैग्नेट कॉयल को लाए, तो कॉयल को लाने से क्या हो गया, तब भी तो फ्लक्स चेंज हुआ, राइट। तो उसने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया कि जब भी किसी कॉयल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जाए तो उस कॉयल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिस ईएमएफ को हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। एंड दिस फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय वेरिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कैसे डिफाइन करें, ये तो मैकेनिकल डेफिनेशन थी, अब इस बेसिस पे कैसे डिफाइन करें इन सब के बाद। अब क्या कहा उसने, अल्टीमेट कंक्लूजन क्या किया, किसको कहा ईएमआई, राइट। फैराडे ने क्या मिला, फैराडे को होगी, व्हेनेवर ए मैग्नेटिक फ्लक्स related to a coil, बाद में लगा सर्किट के भी काम करता, और सर्किट इज वेरीड, कैसे भी चेंज करो आप, मैग्नेट को मूव करो चाहे कॉयल को मूव करो, जब भी फ्लक्स वेरी करेगा
तब क्या होगा, देन एन EMF is produced in that coil or circuit. This phenomena of producing EMF by varying the magnetic flux is known as electromagnetic induction. याद रखिए, बहुत पॉपुलर फिनोमेना है EMI, राइट। किसी भी सर्किट या कॉयल के मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से उसके अंदर एक EMF डेवलप हो जाता है। तो किसी भी दिस फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग EMF बाय वेरिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू सर्किट और कॉयल इज नोन एज EMI। याद रखिए, द EMF produced is known as induced EMF. Remember this word, induced EMF. And if the circuit, CKT is the short form of circuit, is closed, then the current flowing is known as induced current. क्यों ये वर्ड इंड्यूस यूज़ कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं, उस पर एक लॉ आता है। तो याद रखिए, इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट बेसिक सिंपल है कि आप उसका फ्लक्स वेरी कराइए सर्किट या कॉयल का, उसकी वजह से एक EMF डेवलप हो जाएगा और उस EMF की वजह से एक इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगी, राइट। तो ये है बेसिक EMI का। अब इस पे बेस कुछ लॉ दिए उसने। बेस्ड ऑन दिस EMI फिनोमेना, फैराडे प्रपोज्ड 2 laws, राइट। फर्स्ट law is its definition itself. What this law says? According to this law, what? Whenever the magnetic flux related to a circuit or a coil is varied, what will happen? Then an induced EMF is produced, right? If the circuit is closed, then what happen? Then an induced current is also produced. So this is actually the conclusion of the definition itself, right? कि जब भी किसी सर्किट या कॉयल का हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दें तो उसमें एक इंड्यूस EMF डेवलप हो जाएगा, सर्किट क्लोज है तो एक इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगी, राइट। तो ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। सवाल है सेकंड लॉ का, वो मैथमेटिकल पार्ट है इसका। सेकंड लॉ, राइट। इसके स्टेटमेंट से पहले हम जरा बात कर लें कि लेट φ1 ले लें हम लोग, इनिशियल मैग्नेटिक
फ्लक्स एट T1 टाइम ले लिया T1 एंड phi2 में द फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स एट T2 टाइम, राइट। तो चेंज ऑफ फ्लक्स कितना हुआ, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको रिप्रेजेंट कर दें हम डेल्टा फाई से। तो डेल्टा फाई क्या होगा, phi2 माइनस phi1, राइट। यदि हम टाइम इंटरवल की बात करें, कितना टाइम इंटरवल हो गया, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है, क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बाया डेल्टा टी, राइट। और मैथमेटिकली देखना चाहेंगे तो phi2 माइनस phi1 बाया T2 माइनस T1, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आया, राइट। अब लेट, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा था, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट और कॉइल्स। सपोज करो ई इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो गया, तो ये लॉ जो है इस ई को डेल्टा इससे जोड़ देता है। तो ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in the phenomenon of EMI, याद रखिए फिनोमिना बोलते हैं लेकिन फिनोमिनन है EMI, the induced EMF produced is always directly proportional to the, ये याद रखना सर, ये वर्ड नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू of the rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जो ये ई इंड्यूस डेवलप हुआ था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस वैल्यू ऑफ डेल्टा फाई बाया डेल्टा टी के, नेगेटिव रेट के, राइट। इसको खोल दें तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 तो माइनस डेल्टा फाई बाया डेल्टा टी इक्वल टू, and if n be the number of turns in the coil, तो E is equal to minus n delta phi बाया delta t, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। n नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट आ जाएगी वोल्ट, राइट। ये सिंपल तरीका है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इससे हम इंड्यूस ईएमएफ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब ई आपके पास आ गया, इंड्यूस करंट भी इससे निकाला जा सकता है। लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई बाया आर, तो मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा माइनस एन डेल्टा फाई बाया आर इंटू डेल्टा टी, ये हमारे पास इंड्यूस करंट आ जाएगी, राइट। दोबारा बोल दो। किसको, यही यही
इंड्यूस ईएमएफ के बाद यदि इंड्यूस करंट निकालनी है तो I इक्वल टू ई बाया आर, आर उस सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ई की वैल्यू पुट कर दो तो इससे आपके पास I निकल आएगा। ठीक है। यदि मुझे कभी कभार कहता है चार्ज निकाल डालो, कितना चार्ज डेवलप हुआ, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। Q इज इक्वल टू आई डेल्टा टी यदि मैं पुट कर दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एन डेल्टा फाइव बाया आर डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, राइट। Q इज इक्वल टू आ जाता है माइनस एन बाया आर डेल्टा फाइव। कभी कभार इस पे भी सवाल डाल देता है। Q देखो, Q जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, जबकि I टाइम पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। यही यदि हम E को चेक करें, E क्या था मेरे पास, माइनस एन डेल्टा फाइव आया डेल्टा टी। ये E में R कहीं नहीं है। इंड्यूस्ड EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, रजिस्टर करंट डिपेंड कर रही है भैया। Q इंडिपेंडेंट ऑफ, इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है, इन्हीं से सवाल बनता है। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इंटरवल, ये लॉ बन जाते हैं फैराडे के, और इन्हीं पे सारा खेल खेलना, इन्हीं पे सारा चैप्टर है, राइट। अब ये नेगेटिव क्यों आया, सवाल तो ये था कि नेगेटिव कहाँ से आ गया। तो जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट है, इनकी डायरेक्शन हमेशा कन्वेंशनल करंट की अपोजिट आती है, राइट। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो लेंजेज लॉ है, हम कर लेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा एक मुहावरा याद रखिए लेंजेज लॉ के, हिंदी में है, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ही इसमें बनता है। तो हम कल टॉपिक लेंगे लेंजेज लॉ। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग अस एंड डू वर्क हार्ड। हिंदी अंग्रेजी को प्रॉब्लम मत बनाइए, आंसर इंग्लिश में ही लिखना है। आपको हिंदी में बोलने के लिए चाहिए, मैं बिल्कुल बोलूँगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने कहा है, वो भी नॉर्थ ईस्ट के दोस्तों ने कहा है कि थोड़ा हिंदी का यूज़ किया जाए। बेशक मैं करूँगा, मैं खुद हिंदी से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन सारी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि आपको लिखना उसी में है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।